سینٹ انتخابات پر پی ٹی آئی میں خاموش گروپنگ عروج پر بانی پی ٹی آئی کی واضح ہدایات بھی نظر انداز اختلافات شدت اختیار کر گئے ذرائع کے مطابق عرفان سلیم کو مرکزی قیادت کے چند رہنماؤں کے علاوہ 11 ایم پی ایس کی حمایت بھی حاصل ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکیل خان گروپ سینٹ انتخابات کے حوالے سے نظریاتی امیدواروں کی حمایت میں پیش ہیں اس متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے بی این نیوز زاہدہ راؤ سے زاہدہ بتائیے گا کیا اس طرح سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں سینٹ انتخابات کو لے کر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کہاں تک پہنچے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی نے واضح ہدایت دی تھی کہ اختلافات جو ہے میڈیا کی زینت نہیں بننے چاہیے لیکن جو سینٹ انتخابات نزدیک آ رہے تو گروپنگ عروج پر ہے شکیل خان گروپ جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے تیمور جھگڑا خان جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں آج پریس کانفرنس کی گئی پی ٹی آئی کی تنظیمی امیدواروں کی جانب سے وہاں پر جو ہے پشاور میں اور کھل کر اختلافات سامنے اور نظریاتی امیدواروں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ دیے جائے اور وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور سے ملاقات بھی کی ہے ان کی لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے اگلی جو ہے نشست ہے وہ رات 9 بجے ہوگی علی گنڈا پور صاحب مذاکرات کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے وہ گنڈا پور کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ علی گنڈا پور جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں علی گنڈا پور کو ہم سپورٹ کریں گے زبانی پی ٹی آئی کی ہدایات ہے کہ علی گنڈا پور جس کو ٹکٹ دیں گے تو مرکزی قیادت سپورٹ کرے گی لیکن بار بار رہنماؤں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ میڈیا پر بار بار اس طرح کی باتیں مت کریں بیٹھ کر بات چیت کریں مسائل حل کریں اور ٹکٹ کے بارے میں بھی ہے کوئی اختلافات اگر ہیں تو بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے باتیں کرنا مناسب نہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت نہیں کی اور ہم جو ہے اپنی مرضی سے ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن دوسرے گروپ کا یہ موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات یہ نہیں ہے جس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کچھ اور تھی ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے زاہدہ یہ بھی کہے گا کہ دیگر جو پارٹی رہنما ہیں جن میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں سلمان اکرم راجہ سے آج کچھ رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو وہ اس بارے میں کیا موقف اختیار کر رہے ہیں بالکل سلمان اکرم راجہ ہوں شیخ وقاص اکرم ہوں بیرسٹر گوہر ہوں عمر ایوب ہوں شبلی فراز ہوں یہ وہ والا گروپ ہے جو علی گنڈا پور کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اور اس گروپ کو یہ بھی بالکل نظر انداز کر رہا ہے اس گروپ کا یہی شکوہ ہے کہ اگر علی گنڈا پور صاحب ہمیں نہیں سنے سیکرٹری جنرل ہمیں سنے اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہے جو علی گنڈا پور کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہماری ہی ساری غلطیاں ہیں علی گنڈا پور کو بھی ہمیں بٹھا کر تمام مسائل حل کرنے چاہیے اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی ہماری باتیں نہیں سنیں گے تو ہم پھر میڈیا کی یہ باتیں زینت بنیں گے اور باہر آ کر ہم یہ باتیں ضرور کریں گے زاہدہ بہت شکریہ آپ نے اس متعلق بتایا عرفان سلیم کو پی ٹی آئی کے 11 ایم پی ایس کی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی میں سینٹ انتخابات کو لے کر اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی عہدیداران اپنی قیادت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے رہنما رحمان جلال نے کہا پارٹی کا فیصلہ نظریے کے خلاف ہے عرفان سلیم کی 22 سالہ جدوجہد ہے انہیں سینٹ الیکشن سے بھونڈے طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے سینٹ الیکشن والے دن صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے ایم پی ایس کو کے پی اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا بانی کے نظریے کے مطابق امیدواروں کی لسٹ مرتب کی جائے رحمان جلال کا مزید کہنا ہے کہ عرفان سلیم سینٹ الیکشن کے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے عرفان سلیم سینٹ الیکشن کے امیدوار ہیں اور رہیں گے اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دے کر مخلص کارکنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی سے ہمارے قائدین سے ہمیں یہ پوری انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں گے اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا اس پر عمل نہ کیا گیا تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے تواسط سے میڈیا کے تواسط سے میں یہ ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے یہ ہمارا کلیئر ہے یہ دھمکی نہیں ہے ہم التجا کر رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے دوسری طرف خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ کرانے پر اتفاق ہو گیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اتفاق رائے کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں بلا مقابلہ سینٹرز کے انتخابات پر اتفاق ہوا ملاقات میں پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود جے یو آئی کے عطا الحق سجاد اللہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ شریک ہوئے اور 6-5 کے فارمولے پر اتفاق پایا گیا ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں کو کمیٹی کے ذریعے راضی کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے مراد سعید فیصل جاوید مرزا آفریدی نور الحق قادری اعظم سواتی اور روبینہ ناز جبکہ اپوزیشن کی جانب سے طلحہ محمود عطا الحق روبینہ خالد دلاور خان اور نیاز احمد بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوں گے ذرائع کے مطابق فیصلے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए ने बताया कि पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली और नहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमती अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का इजलास नतीजा खेज रहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। उन्होंने बताया कि इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालिम गलोच और मेंबर की तज़हीक नहीं की जाएगी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिमान को 14 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिमान के अकाउंट्स में करप्शन की कोई रकम नहीं आई और 12 साल से मुलजिमान इस मुकदमे के बोझ तले हैं। अदालत ने कहा कि इंसाफ नहीं कि 14 साल तक लोगों को मुकदमात में फंसा रखा जाए। अदालत ने तमाम मुलजिमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज से आप इन मुकदमात से आज़ाद हैं। अदालत के मुताबिक ऑडिटर के पास भी मुलजिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं, बेबुनियाद केसेस पर बरी हुआ। जिन्होंने ये केसेस बनाए वो आज हमारे इत्तेहादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का नहीं सोचा। मैंने कहा था कि वादा मुआफ गवाह को भी सजा मिलनी चाहिए। फारूक एचनाई का शुक्रगुजार हूं जिनकी वजह से तमाम लोग बरी हो गए। आज तमाम बेगुनाह लोग भी बरी हो गए, कुछ लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करता हूँ और फारूक नाइक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की और मैं उन सब लोगों को जो गलत मुलव्वस थे उनको आज बरीयत पर मैं मुबारकबाद। मैंने लेजिस्लेशन कराई ताकि हमारा वो ये थी कि जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं आने से पहले अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो एक मुल्जिम को मिल सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात और तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में मजीद सनसनीखेज और नए राजों से पर्दा उठ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक करप्शन केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़ायद सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए जिनमें 5 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियाँ भी जब्त की हैं। 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा से कब्जे में ली गई। इनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें और फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेस और इसी तरह से 175 केनाल ज़रई अराजी शामिल है जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर भी खरीदा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शालीमार कंपनी को बंद न करने की दरख्वास्त की और बहाली के लिए बिजनेस प्लान जमा कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने PIA पर लगने वाली पाबंदी यहाँ ख़त्म होने और यूरोप व्यू के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने का जिक्र किया। तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर नहली और करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि अदालत में अपना मौक़िफ़ कानून के मुताबिक पेश किया है। क्योंकि वो कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही काफ़ी अरसे से और मेरे आने से पहले से वो ऑब्वियसली कंपनी का एक वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा था। तो मैं सिर्फ कोर्ट से हम ये हम्बल सबमिशन करने आए थे कि इसकी वाइंडिंग अप ना की जाए। एक बिजनेस प्लान इसका बनाया जाएगा, कोर्ट को सबमिट किया जाएगा ताकि ये कंपनी जो है ये चल। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, नाअहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी इजलास हुआ। कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली के ज़ेर सदारत इजलास में वजारत मवासलात से मुतल्लिक 2010-11 और 2013-14 के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने टोल टैक्स में बार बार इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कन्वीनर ने कहा कि गरीब आवाम पर बोझ बढ़ रहा है, जिस पर सेक्रेटरी मवासलात ने वजाहत दी कि 2018 के बाद टोल रेट्स में इजाफा नहीं हुआ। फैंस चोरी के मामले पर भी गुफ्तगू हुई और कन्वीनर ने जिम्मेदारों के तयन की हिदायत की। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में धोखाधड़ी, चोरी और गबन जैसे 10 करोड़ रुपए के नुकसान पर ऑडिट एतराज भी जेर बहस आया। हुकाम ने बताया कि 1.22 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी, जबकि 26 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। कुछ केसेस नैब और FIA के पास हैं। कमेटी ने मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 35वां इजलास हुआ। 3 MPO के कानून पर गौर व खोज और इसमें इस्लाहात लाने और 3 MPO का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। वज़ीर आला ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सूबे में अमन व अमा की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिरगों और मुकामी उमायदीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में भी अमन कायम किया जा सकता है। इजलास में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शुहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों और दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले मौलाना खान ज़ेब के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 रुकनी नई इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस आजम खान कमेटी के मेंबर होंगे। ये नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी किया। इंतजामी कमेटी को हाई कोर्ट के तमाम इंतजामी फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। सेनेट ने खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान बाला ने फौजदारी कानून में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म कर दी जाएगी। सेनेट से पास बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या इसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मसालिहत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए, जबकि सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं। ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए काम की जा रही है, जिस पर वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जुराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जुराइम में सजाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं, औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। Assault or criminal force to women and stripping her of her clothes, ये एक बहुत हीनियस ऑफेंस है। इसके लिए डेथ पनिशमेंट की गई थी। हम अपोज करते हैं कि इसको डेथ ही रहना चाहिए, लाइफ नहीं होना चाहिए। Because we have to please international borders or money trade or whatever, तो उसकी वजह से हम जो है अपनी पनिशमेंट्स को भी कम करेंगे, तो सर फिर तो हर कोई हर कुछ कर जाएगा। इतनी पनिशमेंट्स होने के बावजूद सब कुछ हो रहा है, उसको भी आप कम करेंगे तो आई डोंट नो, इट्स आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोसिक्यूशन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स। सर ये हमने कहाँ से सोच लिया है कि जो सज़ा की संगीनी है ये जुर्म को रोकती है। हमारे यहाँ 80, 90, 100 जराइम में सज़ाए मौत है और क्राइम रेट आसमान से बातें कर रहा है। यूरोप पूरे में सज़ाए मौत नहीं है। यह 2 ग्रोहों की पानी काटने पे औरत को शामिल किया जाता है, उसका इस्तेसाल किया जाता है कि जी ये देखिए इसके कपड़े फटे हुए हैं, स्टोरी बना के ले जाते हैं, जाके खड़ा करते हैं क्योंकि सजाए मौत जमानत नहीं होगी। मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर ने आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाके सूरत हाल में तब्दीली, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतल्लिक मामला ज़ेर बहस आए। दोनों अस्करी क़यादतों ने दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तफाक किया।
تاکہ عصر حاضر کے سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی گئی، جہاں انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھا کر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہیں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔